प्यार क्या है? प्यार ना हर चीज है। प्यार एक ऐसा यूनिवर्सल एनर्जी है जिसमें सारी एनर्जीज आ जाती हैं एंड विद एज हमारी प्यार की डेफिनेशन बदलती हैं क्योंकि लोग बदलते हैं। Love is like a pillar for all emotions. Like सबका बेस है. It's like every emotion is related to love. जब आप आगे बढ़ेंगे ना लाइफ में तो आपको पक्की बात है कुछ ना कुछ आपको उस एक्सपीरियंस से इतना स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग आपके अंदर बैठेगी आफ्टर योर स्टूपिड कंडीशनिंग ऑफ अच्छा अब तो लोग ऐसे हैं, लोग धोखेबाज हैं, प्यार में ऐसा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे हिसाब से जब जीवन के अंदर पैसे की कमी होती है और जब दिल टूटता है ना, और जब कोई बहुत क्लोज वन मर जाता है, तो ये 3 चीजों में हमें सबसे ज्यादा अपने आप को बदलने का मौका मिलता है और कुछ नया करने का मौका मिलता है। देवी शक्ति इन स्पिरिचुअलिटी इज द एनर्जी ऑफ अ क्रिएटर, caregiver and somebody who holds space. अपना काम करते रहो. That is the basic foundation of starting with spirituality. डेली वर्क लाइफ को स्पिरिचुअल ना समझना बहुत ही मूर्खता की बात है। Hi Rhythm, how are you doing today? It is lovely to see you here. And first and foremost, I've already spoken that your background looks amazing. But still, I would want to know a little more about how has your day been, and like, please tell us more about the background as well. Lakshya, I'm doing good. My day has been really nice. This is one of the walls at my house. My mom and dad have designed it together. So Okay. This is and this is a house that they kind of built together, you know. Oh, It's not like a family home. This is a house they got together and they designed together. So this is my mom and dad's love blossoming forever in the back of me. Always. this is amazing. It looks like you're sitting on a throne from Game of Thrones. Okay, with all of, let's take the embroidered background with a lot of flowers and everything, but it looks very aesthetic. हाँ, very aesthetic, super nice. It's my मतलब ये मेरी मम्मी की पसंद है और पापा का काम है. अरे वाह. And this is also the byproduct of the same love. So both the parents are artists? No, they're not. They are artists of real life. My father is an artist in business and my mother is an artist in home. Oh, So, okay, yeah. that way. Okay, amazing. By the very clever answer. Very clever. Okay, but we'll talk about a lot of things related to what currently you are working on. ठीक है? मेरे को एक fair idea है of what you do, okay, and what you have been doing. But I'd love for you to take 5 minutes and tell us what have you been doing since, let's take, you started off, okay? How did you enter this particular space, and what does the future look like for you? This is not 5 minutes. ये 5 minutes से ज़्यादा हो गया. You asked me 3 questions. Take your time, no problem. Okay, तो मैं एक योगा टीचर हूँ करंटली, बट योगा टीचर को लोग समझते हैं कि ये हमें योगासन सिखाएंगे, है ना, और वेट लॉस करवा देंगे या कोई कमर में दर्द होगा तो उसको करवा देंगे. ऑफ कोर्स मैं वो सब भी करती हूँ, बट आई एक्चुअली ऑल्सो हेल्प पीपल इन सॉफ्ट कोचिंग. आई एक्चुअली am a person who's kind of a bridge between people who want to get into spirituality through the path of yoga and connect more deeply when we say to our culture, which is Sanatan. So I think I would like to explain that I kind of act as a bridge. Like, come, let me help you reach your goal. And uske alawa, I take care of dogs. I love them, and I have, in my relationships, I have a role of a daughter and a sister to play, apart from a teacher and a friend. So I do that, and I live my life, and I enjoy that. Amazing. Simple, sweet, sober. I love that part. But when you say you help people with their goal, correct? Mhm. When they join spirituality, what does that mean?
इट मीन्स दैट जैसे ना बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि अभी मैं स्पिरिचुअलिटी में जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो मतलब मेरा जो भक्ति लेवल है वो ज्यादा है, मैं तो अपने काम में फंस गया हूँ। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मतलब इस मोह माया में क्या रखा है ये वाली कोटेशन के साथ। और सभी होते हैं, एक टाइम पे हम भी कंफ्यूज थे, पर वो टाइम निकल जाता है विद द हेल्प ऑफ direction. I had direction, so and then eventually I realized that it's also so important for me to kind of go through the process by myself, because I understand each step that is on the way, which helps me. So I guide them, I help them understand that जरूरी नहीं है कि हर कोटेशन को आप अपने जीवन में हर जगह पे ही अप्लाई कर दो, है ना? तो ये मोह माया जीवन में ये कोटेशन को कहाँ पे अप्लाई करना है वो इम्पोर्टेंट है। और फिर ये एक और कोटेशन भी है जिसमें भगवान बोलते हैं कि अपनी डिजायर जो मैंने आपको दी हैं ये आपके पर्पस के लिए दी हैं, इसे फुलफिल करिए। एंड देन कम्स द रोल ऑफ अ टीचर, जिसमें वो आपको हेल्प करते हैं बेसिकली बताने में कि आप कि कौन सी डिजायर अच्छी है और कौन सी बुरी है ना? और अभी आपको अपने लाइफ में क्या करना है। So I think I help people understand that wherever they are in life, they should be happy about that, and the things that are necessary to keep happening so that they can continue to live a healthy life in a way where they are doing what they need to do when it comes to their age, when it comes to the people and the relationships that are surrounded. I do not help people in taking sannyas. I actually help them. I help them do what they need to do, and also make them understand that it will happen, but don't miss the step. So I always kind of, I think, make people understand that you don't need to jump. You just need to take the step, and it's an easy ride. Don't make it difficult by rushing. So yeah, that's correct. That. So basically, you enable spirituality in people's lives in a way that they can balance both spiritual life and daily work life. Correct? हाँ, क्योंकि डेली वर्क लाइफ को स्पिरिचुअल ना समझना बहुत ही मूर्खता की बात है। क्योंकि आप देखोगे जब हम स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाएंगे ना, जैसे मैं तो ऋषिकेश में भी रहती हूँ, तो ऋषिकेश के अंदर क्या होता है, और सबको क्या लगता है कि आपने तिलक लगा लिया है, आपने धोती कुर्ता डाल लिया है, या थोड़े से आपके कपड़े ऐसे वैसे, अरे बहुत भक्ति के हैं। और आपको मालूम नहीं है स्पिरिचुअलिटी के अंदर कितने सारे स्कैम्स होते हैं, कपड़े वैसे डालेंगे, बातें हरे कृष्णा हरे रामा करेंगे, बट कर्म एकदम कांड वाले करेंगे। सो वी कॉल देम कांडेश्वर्स एंड कांडेश्वरीज इन द फनी लैंग्वेज ऑफ सेइंग दैट, बिकॉज आप वैसे दिख रहे हैं पर आपने जो एक्चुअली करना है वो आप नहीं कर रहे हैं, है ना? करेक्ट। वो नहीं है। एंड देन व्हेन यू काइंड ऑफ बिकॉज यू ऑब्जर्व बोथ साइड्स, है ना? I am in a spiritual place and people say you are so close to God. But I think when you are so close to God in a certain way, it will be more difficult for you to reach God. And you see so much Maya. And then when I come to the city and I reflect back, and when I'm in the city and मैं अपने friends को देखती हूँ जो 9 to 5 करते हैं या अपना business करते हैं या jobs करते हैं, they are actually living the spirituality by doing what they need to do and by being very responsible. So spirituality without responsibility is nothing, but you are passing your time and you are escaping your responsibilities. So I think that is very, very necessary, and I want people to understand that. Yeah. That's very fair, and that's actually something I also believe कि अपना काम करते रहो. That is the basic foundation of lying, or let's say starting with spirituality. But with that, I actually got to know you through one of the reels that became very, very, viral, I guess, in the recent times. Which one was it? Which reel was that? So that was the Kanya Puja wala reel. Okay. Yes, and that was something that I guess a lot of people related to. Okay, but I would ask you a very simple thing. In that thing, you mentioned that Devi, or let's say our mothers, and let's say all female people are faces of God. Okay. Yeah. I want to ask you one simple question. What is that Devi Shakti in spirituality? Devi Shakti in spirituality is
the energy of a creator, caregiver and somebody who holds space. ठीक है, तो सिंपल सी बात है. और इसमें ना आप मतलब काफी उसमें कमेंट्स भी उस रील में काफी आए, और कमेंट्स के अंदर लोग बोल रहे हैं अच्छा अगर कोई माँ नहीं बनेंगे तो फिर मतलब वो देवी नहीं है. आप माँ बनेंगे या नहीं बनेंगे वो बात की बात है, पर क्योंकि आपके पास वो शक्ति है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना. You choose to become a mother, not a mother, is your personal choice and you have full right to do that. But that doesn't mean that you don't have the energy. You will always have it. तो हमारे कल्चर में क्या है, शुरू से ही सबसे ऊपर कैसे है, जब हम स्पिरिचुअल साइंस में जाते हैं, when we go into that, सबसे ऊपर बोलते हैं डिवाइन मदर, माता भुवनेश्वरी, जिनके अलग अलग नाम है. उसके बाद उन्होंने अपने 3 भाग किए, उसके अंदर आते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके बेटे. फिर उनके माता भुवनेश्वरी से ही 3 आ जाते हैं आगे, सरस्वती, लक्ष्मी माँ एंड पार्वती माँ, है ना. बट द अल्टीमेट रोल इज गिवन टू द मदर इन आवर कल्चर. तो अब वो मदर है, मदर से ही आगे छोटी बच्चियां भी हैं. छोटी बच्चियों को कन्या के रूप में देखा जाता है. उसके लिए हमारे पास त्रिपुरा सुंदरी है ना, देवी त्रिपुरा. तो जिसमें माता छोटा बचपन का रूप लेती है. तो ये जो हमारा जो कल्चर है जो हमें वुमेन के प्रति बोलता है कि ये देवी हैं, ये कथाओं के माध्यम से ज्यादा बताया जाता है. और इसको सिर्फ कथा मात्र के रूप में जानने का सिर्फ स्टोरी नहीं है, हमारे घर पे भी वैसा ही होता है ना. जिनके घर में मम्मी है या बहन है, बहुत माहौल वैसा ही रहता है कि ये मेरी मम्मी है, यू नो. मम्मी के लिए कुछ नहीं सुनिए, लड़कों का ये रहता है. और बहन के लिए पूरा प्रोटेक्टिव रहेंगे, अंदर घर में जितना मर्जी लड़, है ना. तो वो रोल ही वैसा है. क्योंकि इतना प्यार भी तो हमें वहीं से मिलता है ना. पापा से पापा के टाइप का प्यार मिलता है, मम्मी से मम्मी वाला मिलता है, बहन से बहन वाला मिलता है. तो एंड दिस इज अ वेरी रिच थिंग. क्योंकि अगर आप बाकी कल्चर्स में देखोगे और बाकी किताबों में भी पढ़ोगे, आपको कहीं पे इतना फ्रीडम, है ना. और ये फ्रीडम वॉर्स के वो सब होने के बाद जो कल्चरल डिफरेंसेस बाद में हमारी सोसाइटी है, मैं उसके अंदर नहीं जा रही हूँ अभी. आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस ऑफ व्हाट इट इज, कि इतना फ्रीडम, इतना रिस्पेक्ट, इतना लव आपको कहाँ मिला है. पढ़ाई की देवी कौन देवी है ना, पढ़ाई की भी. करेक्ट, सरस्वती माँ, सरस्वती जी. गा भी रहे हैं तो उनसे उनकी विद्या के लिए बोला जा रहा है, राइट. शक्ति के लिए कौन, दुर्गा माँ. प्रोटेक्शन के लिए कौन, काली माँ. तो एवरी डे एंड एवरी टाइम यू हर्ड व्हाट डू यू से, मम्मी के पास जाऊंगा, मैं अपनी मम्मी को बताऊंगा. कोई ऐसा नहीं बोलता अपने पापा को बताऊंगा बताऊंगा, ये मम्मी आगे तुझे देखेगी. तो ये मम्मी की एनर्जी है. एंड मेरी मम्मी से मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, आई विल शेयर इट. तो मैंने, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं ना हम किसकी भक्ति कर रहे हैं, और वो टाइम टू टाइम में आता है. तो मैंने एक बार अपनी मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी, तो देवी साधना की कोई बात हो रही थी. तो मेरी मम्मी कहती है देखो बेटा, सिंपल सी बात है, घर में जब कुछ चाहिए रहता है, कोई नाराज हो जाता है ना, तो क्या होता है कि पापा बोलेंगे नहीं नहीं तो नहीं, मम्मी मना लेगी. अगर मम्मी ने हाँ बोल दी तो पापा कुछ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम मम्मी को मनाते हैं. तो यू गो टू द मदर, डिवाइन मदर, लाइक मम्मी प्लीज. अभी ना तो विष्णु जी माने, ना तो महादेव माने, ना गणेश जी माने, आप सब हम मम्मी के पास जाएंगे. द प्लेफुलनेस शुड बी अलाइव. ओके, यू नो. लाइक बहुत बहुत ब्यूटीफुल तरीके से फ्रॉम डे टू डे एक्सपीरियंसेस यू हैव मेड मी रियलाइज कि देवी शक्ति क्या है. बट इसमें देयर वाज अ वेरी वेरी स्पेसिफिक पार्ट यू स्पोक अबाउट, वो है प्यार. ठीक है, एंड आई विल आस्क यू अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. प्यार क्या है? प्यार क्या है, उफ, है ना. प्यार क्या है? It's very interesting you asked me this question, because I was having this conversation today with a very dear friend of mine. तो प्यार ना हर चीज है. प्यार एक ऐसा यूनिवर्सल एनर्जी है जिसमें सारी एनर्जीज आ जाती है. एंड विद एज हमारी प्यार की डेफिनेशन बदलती हैं, क्योंकि लोग बदलते हैं, रिलेशनशिप्स बदलते हैं, और हम बदल जाते हैं. तो अभी मैं जिस
अपने लाइफ के फेज में हो, मैं ये समझती हूँ प्यार वो शक्ति है, ठीक है, जो आपको अपने प्रति और अपने सामने वाले के प्रति, फिर चाहे वो आपका प्रेमी है और प्रेमी जो हस्बैंड है, माता पिता है, भाई बहन है, जानवर है, अनजान है, मतलब एक तो मैं हूँ, मेरे लिए प्यार वही शक्ति है जो मुझे मेरे लिए और मेरे से बाहर जितने भी लोग हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाए। अगर मैं सामने वाले के लिए रिस्पॉन्सिबल फील करूंगी तो मैं गलतियां नहीं करूंगी, है ना? ओके, तो मैं टाइम पास नहीं करूंगी, करेक्ट. जो आजकल हम बहुत देखते हैं, these amazing terms are also coming. I was educating myself with the terms of delulu, sululu, and हाँ, what was it? Benching and वो मेरे something को नहीं something. हाँ, तो मुझे जानना भी नहीं है, but somebody was trying to tell me and I was just wondering that no, because you're not responsible for yourself, then Correct. you're not responsible for others, and then you are creating expectation, and ये एक बहुत गंदी mental आदत है, क्योंकि it will reflect back in your house with your parents also, है ना? Okay. So love is that energy that makes you responsible, and when you feel that energy, it comes with a play of sadness, tears, happiness, joy. So yeah, that's that. That energy brings these emotions, but that energy on totality is only that energy that makes you responsible. नहीं, वो आपने बहुत सही बात बोली, बिकॉज आई फील लव इज लाइक अ पिलर फॉर ऑल इमोशंस, लाइक सबका बेस है. इट्स लाइक एवरी इमोशन इज रिलेटेड टू लव. इफ यू आर एंग्री इज बिकॉज समथिंग डिडंट हैपन अकॉर्डिंग टू व्हाट यू वांटेड और व्हाट यू लव्ड. ठीक है. If you're sad, so you already understand कि you are either feeling sad because of something that you didn't, want that you loved. So I somewhere feel love is like the base emotion for every other emotion that is out there. But in this aspect of love, ठीक है. So हमारे जैसे I come from a very startup background where I have a lot of friends who are founders, ठीक है. And बहुत जनों ने मेरे से एक ही सवाल पूछा है, ठीक है. एंड दैट इज लाइक मूव ऑन कैसे करे, लेट गो कैसे करे, सरेंडर कैसे करे, सो दैट दे कैन कम आउट ऑफ दैट फीलिंग. बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट, लेट्स टेक समथिंग ऑफ देयर ओन, बिकॉज दे वांट टू प्रूव दैट दे आर केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, because something happened in their relationship or anything like that that did not work out for them. ठीक है. And they are like, हम लोग इसको लेट गो कैसे करें, सरेंडर कैसे करें इस पर्टिकुलर फीलिंग को. सो व्हाट डज स्पिरिचुअलिटी टीचेस ऑन लेट गोइंग, लाइक लेटिंग गो और सरेंडरिंग टू द कॉस्मोस? इसमें सबसे पहले तो एक ही चीज जरूरी है, वो ये समझ लेना कि जो चीज जैसी है उसे वैसे ही समझना, और अब आप उसे जैसे समझ रहे हैं या जो आप चाहते हैं कि वो चीज बने, उसे वैसे नहीं देखना. करेक्ट. तो उससे क्या होगा, एक्सेप्टेंस आएगी और उसमें समय लगेगा. और दूसरा, ये जो गंदी सी रील्स आती हैं उसी टाइम पे ही आएंगी, वो वाली रील्स ना, सैड वाली, दूसरे को धोखेबाज बोलने वाली, ये सब उसी टाइम ही आएगा, एकदम उसी टाइम आएगा. तो उसमें ज्यादा इंडल्ज नहीं होना. हैविंग रिस्पेक्ट फॉर द टाइम ऑफ योर ओन लाइफ. क्यों कि हाउ कैन यू से कि मेरे लाइफ में कोई स्टूपिडिटी हो गई मेरे लाइफ में, तो यू आर कॉलिंग योर सेल्फ स्टूपिड, आप अपनी लाइफ को स्टूपिड बोल रहे हो, है ना? अगर आपको पहले पता होता तो शायद आप डिसीजन अलग ले लेते, बट आपने अपना एक टाइम स्पेंड किया है, ठीक है, अपने जीवन का, इस जीवन का एक समय निकाला है ना? तो उसकी रिस्पेक्ट के लिए सबसे पहले तो अपना मतलब बोलना खराब मत करो. चाहे गलती आपकी या सामने वाले की है, बस बोलो कोई बात नहीं, ये एक एक्सपीरियंस ऐसा ही था, अभी ऐसा ही हुआ है. क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे ना लाइफ में, तो आपको पक्की बात है कुछ ना कुछ आपको उस एक्सपीरियंस से इतना स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग आपके अंदर बैठेगी, आफ्टर योर स्टूपिड कंडीशनिंग ऑफ अच्छा अब तो लोग ऐसे हैं, लोग धोखेबाज हैं, प्यार में ऐसा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है. बट हमें एक तरह का इंसान जब बनना होता है तो कभी कभी ये ऐसी चीजें होती है ना. मेरे हिसाब से जब जीवन के अंदर पैसे की कमी
होती है और जब दिल टूटता है ना, और जब कोई बहुत क्लोज वन मर जाता है, तो ये 3 चीजों में हमें सबसे ज्यादा अपने आप को बदलने का मौका मिलता है और कुछ नया करने का मौका मिलता है। Correct. तो हमें उसे यूटिलाइज करना चाहिए, मतलब इट्स टाइम टू लेवल अप करके देखो, बट ईगो के साथ नहीं, ठीक है। और जो ये फीलिंग है जिसमें लोग सैड हो जाते हैं, तो मैं एकदम प्रैक्टिकल एडवाइस यही बोलूंगी कि पहले बात ये कि आप ये जान लीजिए, अगर आपका दिल टूट ही गया है तो दर्द तो होगा ही, तो उस दर्द को दबाने की बजाय उसे महसूस ही कर लें थोड़ी देर, अपना सैड सॉन्ग सुन लें, जाएं पुरानी जगह पे, उसे याद करें, कर लीजिए, एकदम दिल खोल के करिए। मैसेज करना है कर दीजिए, मत सोचिए उसने देखा या नहीं, फिर उसमें मत पड़िए, अपने लिए करिए। और साइको भी मत बन जाइए कि दूसरे की पर्सनल स्पेस आपने ले ली है, बट अपना इमोशन को फील करो, क्योंकि अगर आपने उस इमोशन को फील नहीं किया पर वो इमोशन रहेगा, अब वो गुस्से में मैनिफेस्ट होगा, या आप वो गुस्सा अपनी मम्मी पे आके निकाल देंगे, अपने भाई या बहन पे निकाल देंगे, या किसी दोस्त पे निकाल देंगे, या सड़क पे बेचारे किसी अननोन को ही निकाल देंगे। Correct. तो यू फील इट, यू मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड कि नहीं, बुरा तो लगेगा ही, अब मैंने प्यार किया तो बुरा लगेगा, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू ब्रिंग दिस फीलिंग ऑफ ऑ, लाइक कि यार देखो, मतलब आई वुड डू दैट आई वुड से रिदम, वन लाइफ, न्यू एक्सपीरियंस, ऐसा भी फील होता है ना, उसको सरप्राइज मोड में डाल दो कि उसको, बिकॉज अब आप ऑब्जर्वर बनोगे ना कि अच्छा मैंने दिल लगाया, मेरा दिल टूटा, तो अब कैसा होता है, ऐसा भी लगता है एक इंसान को। सो व्हेन यू स्टार्ट काइंड ऑफ नॉट डिस्ट्रैक्टिंग योरसेल्फ बट playful in that environment with yourself, and it's difficult, but the moment you do it, it will help you. And the best thing is that you talk about it when you have to, and then you do not talk about it when it's not needed. You listen to the song when you have to, dedicate a time, अभी मैं 1 घंटा एकदम उदास देवदास बनूंगा, और उसके बाद कोई सवाल ही नहीं है, उसके बाद I have the role of a son to play, I have a role of a, if you are a CEO somewhere or you're doing something, I have to do that, and then I have to look at the dogs in the street and do everything. Everything should have a time, and there should be a time to, how do I say, grieve. There should be a time of grief that should be there. And I really hope that if somebody is going through their breakup, तो आपके जो partners हैं वो supportive हैं आपको उस journey से निकलने के लिए, so that they don't ghost you and they don't do you were the delulu so no solulu. So all the best. I'll tell you what, whenever someone जैसे asks me as well कि if someone is going through ऐसा कोई problem, ठीक है, या फिर they're not being able to accept that sadness, that negative emotion, I have this one simple thing that I tell them, ठीक है, definitely बहुत सारे तरीके हैं, like hundreds of ways to solve it out, ठीक है, some say that write down the problem, वो 90% वही solve हो जाता है, ठीक है, some say that एक बार रो लेकिन अच्छे से रो और सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, हाँ. like I say something very very honestly, and that is like it starts with, it is 3 A's, simple 3 A's, okay. First is accept कि है emotions, like you are feeling hurt, वो accept कर लो, ठीक है, because खराब तो लगेगा, that's definite, okay. Second is acknowledge कि हाँ मेरे को affect हो रहा है, like let it flow, let it, like you have to experience that whole emotion, so acknowledging the presence of it. And the third A is affect, and वो क्या है, do not let it affect you, वो acceptance लाना पड़ेगा. So with time you have to start learning these 3 A's that would help you, let's take, experience every emotion and come out of it, ताकि वो एक तरह से हावी ना हो जाए हमारे सर पे. It does not affect us in a day-to-day life, and that is what I suggest people, ठीक है. And I personally have tried it, ठीक है. It really really helps a lot, okay. I want to ask you one thing. I mean, I love it. I'm with you because I think we are saying the same thing when we say accept and acknowledge. नहीं, हाँ, accept, acknowledge, and then is affect, है ना? So what tricks do you give to people so that it doesn't affect them?
हाउ इफ सोचो अगर किसी ने पूछा तो मुझे इफेक्ट कैसे नहीं करेगा, मैं उसे कैसे रोकूंगा, तो आई थिंक वी शुड काइंड ऑफ शेयर दैट See, आल्सो. first thing you have to understand कि वो particular emotion is not forever. It's temporary. हाँ. ठीक है? Yes. It's momentarily you are feeling. 5 साल बाद you might not feel that same pain in the same way. So first acceptance is it's temporary. Second is Yeah. it cannot ruin your whole life. That it cannot. I agree with Exactly. So हम लोग क्या करते हैं, एक नेगेटिव इमोशन आया, we start relating that one thing with all negative emotions. मतलब एक चीज बुरा हुआ लाइफ में तो सब चीज बुरा है लाइफ में. ठीक है? हाँ. मतलब हाँ. मेरा, चलो फॉर एग्जांपल मान लो मेरा कल जैसे बोर्ड्स का पेपर है एंड आई गिव माय 100% बट मेरे मार्क्स नहीं आए. ठीक है? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं. ठीक है? सिंपल एग्जांपल एंटी की. ठीक है? मार्क्स नहीं आए तो मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे को पढ़ाई नहीं आती, मैं अच्छा नहीं दिखता, करते 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 कहाँ चला जाएगा, यू डोंट इवन नो दैट. हाँ, वो थॉट तो मतलब इट्स मतलब क्या बोलेंगे, डॉग विदाउट लीश है. करेक्ट. गया तो, और वो डॉग है जो घर पे खुश नहीं है, उसको जाना है. Correct. वो जाएगा एंड यू नो वापस नहीं आएगा. that is where there was I heard this somewhere. ठीक है? There are two wolves. Okay, one is a dark wolf and one is a light wolf. Your life depends on which wolf you feed. As simple as that. And this is where I tell people कि वो अफेक्ट वाला जो पार्ट है उसको 1000 तरीके सॉल्व करने के लिए. ठीक है? लेकिन you have to come over it and that is some strength that you have to bring in yourself. आई थिंक इनिशियली पहले लोग दो में अटके रहते हैं काफी देर तक. वो अगर फर्स्ट बार फर्स्ट एक्सेप्ट और एक्नॉलेज कर लेंगे तो सेकंड थर्ड वाला तो बहुत इजी हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा. हाँ. It's to be manifested as the next step. So very good, like Correct. you summed it up very well. I like the 3A thing. Thank you. But I'll ask you this one more thing related to the last 3 things that we spoke about. ठीक है? It is something that a lot of people have asked me and people run away from this. ठीक है? मतलब एक बार जब हो जाता है उसके बाद they run away from this if it is not going well. ठीक है? And that is, can love happen twice? Oh, it can happen so many times. What are you talking about twice? It will happen 3 times, 7 times, 10 times. Because like I said, you know, the 16-year-old you will love what a 16-year-old you will love. And the 21-year-old you will love what a 21-year-old you will love. And then it all depends upon the people you meet and if you are able to connect. तो वो जो प्रेशर रहता है ना किसी के दिमाग पे, जो मेरा पहला प्यार था बस वही है और वो दूसरे में जा नहीं पाते हैं बट हो सब कुछ रहा है, तो वो इवेंचुअली सबका इवेंट ब्रेक हो ही जाता है. और जो लोग अभी भी अपने पहले प्यार के साथ हैं, कुडोस टू यू टू. आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनी ऑफ दैट. अगर आपका दूसरी बार हो रहा है तब भी ठीक है, तीसरी बार हो रहा है तब भी ठीक है. अब नहीं फुलफिल हो पा रहा है तो इंसान क्या करेगा, है ना? बट एज लॉन्ग एज you are responsible and you want to take it to the end and you want to make it official, I hope that everybody's first love becomes as deserving of being manifested with the grace of God and parents. Most important. Definitely. You know, but हम ये बात जरूर बोलेंगे कि जरूर होता है. पता है क्यों? क्योंकि ये कुछ नया नहीं है. प्यार आपके अंदर ही, आप खुद ही हो प्यार, है ना? ये हम पे है कि हम अपने आप को ओपन अप किसके लिए और किसके सामने करते हैं, है ना? फीलिंग ऑफ अट्रैक्शंस तो मतलब उसका तो कोई काउंट ही नहीं है. यू कैन गेट अट्रैक्टेड टू एनीबॉडी फॉर एनीथिंग एंड एवरीवन. ही मेक्स मी लाफ, हर आईज आर ब्यूटीफुल. तो ये तो लिमिटलेस है ना? तो प्यार हो जाता है और उसको करना नहीं पड़ता है. बट हाँ, उस प्यार के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या हम वहां पे अवेलेबल रह सकते हैं, एम आई गोइंग टू बी एबल टू फुलफिल दिस रोल विच द पर्सन इज थिंकिंग. वो प्यार, ये वाला जो सेकंड लेवल आता है मेरे हिसाब से, जहाँ पे हमें चूज करना होता है कि क्या हम इसको आगे लेके जाएंगे. अगेन आई विल गो बैक टू द सेम, दैट इज वेयर लव बिकम्स रिस्पॉन्सिबल एंड इट विल देन फ्लरिश.
तो ये दोनों लोगों पे है। तो इसीलिए क्या होगा, आप बाद में देखोगे कि let's say if somebody has dated a couple of people and it didn't work out, and when they wanted it to work out, and eventually now it's working out with the person that and the person is working out, तो जब दोनों साइड से working out start हो जाता है, then the person looks back and they are like कि हाँ मतलब ऐसा प्यार नहीं था, है ना? तो करेक्ट बात ये है, प्यार दोबारा हो सकता है बट सेम तरह का प्यार बार बार नहीं होता है, क्योंकि सेम इंसान बार बार नहीं मिलता है। तो अगर आपको अच्छा इंसान मिला है तो उसकी कदर करें, और अगर आप अच्छे इंसान हैं तो वैसे रहे, नहीं तो अच्छे इंसान बने। इसी बात पे आई टेल टू थिंग्स। ओके, फर्स्ट थिंग विच आई हैव रियलाइज्ड इज कि अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो तो आप किसी और को कर नहीं सकते। ये एकदम सच बात है। लाइक सिंपल है कि मान लो प्यार इज लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है? हाँ। तुम्हारे ग्लास में वाटर ही नहीं है तो तुम किसी और को दोगे कैसे? हाँ, और प्यार का मतलब लेना नहीं है, प्यार का मतलब देना ही है, और आप दे तभी पाओगे जब आप फुलफिल हो। खुद को प्यास लगी है, एक टाइम पे आप पिला भी दोगे कि ले तू पी ले कोई बात नहीं, उसके बाद मैं पी लूंगा या पी लूंगी, पर एक टाइम के बाद हो जाएगा कि तुम अपनी बॉटल लेके आओ, मैं अपनी बॉटल लेके आता हूँ। तो एकदम ठीक बात है ये अपना, क्योंकि उसमें ना इनसिक्योरिटीज चली जाती है, और सामने वाले इंसान को ना, मतलब आपने एक चीज देखी है, आप किसी का भला करोगे, है ना? जब हम लोग किसी का भला करते हैं, हम क्या कहते हैं कि बस इसका भला हो जाए और मैं भी फ्री हो जाऊं उस इमोशन से, क्योंकि हम उसके साथ उस इमोशन में जुड़ जाते हैं। अब रोज ही कोई डेफिशिएंसी में अगर रोज ही रहेगा, and I'm not talking about the hardships of life, like unnecessary, sometimes we get thoughts and our partners support us and take care of us, but if it's reaching to a point which is toxic because of whatever the person is thinking in their mind, and ये तो उसका मतलब क्या है कि इंसान में सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी क्यों नहीं है? बिकॉज इंसान को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद से प्यार नहीं है, खुद में व्यस्त नहीं है ना? भगवान जी का कनेक्शन थोड़ा मिसिंग है। तो बेसिकली वहां पे तो है 100% अग्रीइंग विद टोटली। और सेकंड चीज व्हाट आई वाज टेलिंग वाज, अभी रिसेंटली आई सॉ लाइक सम वीडियो ऑफ समवन, मेरे को याद नहीं कौन था, ठीक है? एंड पता नहीं उन्होंने शायद ये बोला कि आई लव यू में मैं और तू है, तो वहां प्यार नहीं है। हाँ। तो like I don't know, I guess it was some spiritual guru, ठीक है? I am not aware who he or she was, but they were like कि जब हम लोग वृंदावन में जाते हैं, ठीक है, तब वो I love you नहीं होता है, because जहाँ मैं और तू है वहाँ प्यार नहीं है। हाँ। और जहाँ मैं और तू नहीं है वहाँ प्यार है। Because if you want to connect to God, if you want God क्या है, अपन भगवान क्या है, spirituality क्या है, it's oneness with everything around us. Yes. Yes. चाहे वो नेचर हो, चाहे वो हमारे लोग हो, खुद के साथ हो। तो अगर वहां पे मैं और तू ले आऊंगा मैं, that means there are two things, not one thing. Yes. And that is why that is not love. Yes, it's not. It's not. It's totally true. That. What do you? मतलब मैं अग्री करती हूँ इस बात पे कि अब इसको क्या है ना कि लोग, अब वो पता है क्या बोलेंगे, हाँ मैं और तू नहीं है। अब बुरे एक्सपीरियंस हो जाते हैं ना लोगों के साथ, तो फिर वो बुरे एक्सपीरियंस वाले लोग बोलेंगे कि अरे बट अपना तो देखना पड़ता है, मैंने अपना ही नहीं देखा इसीलिए मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरे साथ ये किया उसने, लड़की ने ये किया, लड़के ने वो किया। तो वो भी है, पर इस बात को आई एम अग्रीइंग विद यू, आई वुड जस्ट काइंड ऑफ लाइक टू एक्सप्लेन दिस पार्ट अ लिटिल बिट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डिवोशन, कि मैं क्यों करूंगी, मैं ऐसे नहीं करती, मैं कैसे करूंगा, मेरा नहीं किया तूने मेरी बात नहीं सुनी, यू नो हाउ दीज होल डायलॉग्स गो। तो मेरे ख्याल से जब ये चीज हट जाती है और आप एक सर्विस एटीट्यूड में चले जाते हैं, है ना? भगवान के सामने क्या है, मतलब आपने उनको परम मान के एक्सेप्ट कर लिया है और आप उस सर्विस एटीट्यूड में चले जाते हैं, तो फिर वो प्यार की कोई सीमा नहीं है। और आजकल के लोगों में ये कम इसलिए है क्योंकि वो इनसिक्योर है ना? वो जहाँ पे थोड़ा ओपन अप होते हैं बेचारों के दिल टूट जाते हैं,
तो फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, थोड़ा तो मीन होना ही पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स ये है, मतलब आई टोटली अग्री कि मैं और तुम नहीं होने चाहिए। तो इसीलिए पहले मैं को, लाइक वी आर कमिंग बैक टू योर थिंग, कि पहले मैं से प्यार कर लो। जब मैं से प्यार कर लोगे, इतना भर जाओगे, तो एज अ ह्यूमन एक्सपीरियंस आपको सुख ही तभी आएगा जब आप किसी को दोगे, है ना। कि करेक्ट। मैंने भी एक रील देखी थी, हमारे किसी पुराने एक्टर की थी, और उनकी वाइफ है उस रील में, और वो रील के अंदर बोलती हैं कि मुझे आपके प्यार से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम दोनों के लिए मेरा खुद का प्यार बहुत काफी है। तो ये एटीट्यूड इज इम्पोर्टेंट, यू नो, कि मेरे पास काफी है, आप टेंशन मत लो, मेरे पास मेरे लिए भी और मेरे पास आपके लिए भी। तो वो तो है। बहुत सही बात है, बहुत सही है। बट इस पूरे चीज में देयर इज वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच आई हैव अंडरस्टूड, व्हिच इज पेशेंस। ठीक है। हाँ ट्रू ट्रू, दिस इज डिटेल्ड एंड लाइकिंग इट। आस्क यू वन थिंग, ठीक है, व्हाट डज spirituality teach us about patience? One, and what have you personally learned about patience? Spirituality teaches us about patience. Spirituality is all about being patient. क्योंकि क्या है, देखो, दर्शन कब होंगे? आप मंदिर में जाइए, किसी मंदिर में जाइए, और किसी बड़े मंदिर में जाइए, मैं आपको ये बोलूंगी कि आप तो मंदिर में चले जाते हैं, आपको दर्शन हो जाते हैं, घर के पास वाले मंदिर में, घर पे भी जो आपने पूजा घर बनाया वहां पे भी आपको दर्शन हो जाते हैं। तो आप एक काम करिए, आप किसी दिन ट्रिप पे जाइए, धाम की यात्रा करिए, शक्तिपीठ की करिए, या फिर ज्योतिर्लिंग की करिए, किसी भी बड़े मंदिर पे जाइए, और बस वेट करिए दर्शन। पेशेंस है, बहुत सारे इमोशंस चलेंगे उस पेशेंस। आप तिरुपति बाला जाइए, आपको पता चल जाएगा कि पेशेंस क्या है। वहां पे 12 घंटे वेट करना पड़ेगा आपको, है ना, 12 घंटे आराम से वेट करना पड़ेगा। तो एक दर्शन के लिए, यू नो, एंड द दर्शन इज फॉर हाउ मेनी सेकंड्स, लेट्स से मे बी 20 सेकंड्स, 3 to 5 seconds. 20 आई विल गिव लॉन्ग, मतलब क्लियर दर्शन होते हैं तिरुपति बालाजी के, अच्छे दर्शन। चलो ठीक है, ठीक है। हाँ, आप जहां से भी जाएंगे आपको दर्शन तो अच्छे मिलेंगे प्रभु के। तो मैं कह रही हूँ, वो 20 सेकंड भी अगर हम लें, और 12 घंटे वर्सेस 20 सेकंड, है ना, तो और वो भी सिर्फ देखने के, बात तो अंदर ही अंदर चल रही है, और वो उतनी सी ही विंडो में आपने वो सारे भाव आपके सामने आ जाएंगे जो आपने 12 घंटे महसूस किए, है ना। तो प्यार में भी तो वैसा ही है, आपको पेशेंस तो रखनी पड़ेगी। हाँ, बट इस पेशेंस में एक फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे पता है मुझे दर्शन मिले, है ना, और अगर ऐसे वैसे भी मिलेंगे तो मुझे पता है मैं उनके पास थी, उन्हें पता है कि हम आए थे, है ना। तो यहाँ पे हाँ, हम पेशेंस जरूर रखेंगे, बट हाँ, 2 पार्टनर्स के लिए बहुत जरूरी है कि उनमें एक फेथ एलिमेंट जो है, एक ट्रस्ट एलिमेंट जो है, वो आपस में जितना इनकलकेट कर पाएंगे उतना ही इजी रहेगा दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे को पेशेंस रखने में और देने में। क्योंकि क्या होगा, अच्छा मुझे पता है ये कर ले, मुझे इस बात की टेंशन नहीं है कि ये करेगा या नहीं करेगा, करेक्ट, और इसी बात पे मैं पेशेंट हूँ। और आप देखिए, जितनी भी हमें रील्स में पता चले या इंटरव्यूज में पता चले, तो उनके सब पार्टनर्स के पास पेशेंस क्यों थी? क्योंकि उनके पार्टनर बहुत क्लियर थे कि आप ही हैं, हम आपके साथ ही रहेंगे और आपके साथ ही करेंगे। आप स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं कोई बात नहीं, हमें रहना आपके साथ है, बस हमें थोड़ा समय चाहिए। तो जब इंसान को ये मिल जाता है ना, क्योंकि ये मिलना बहुत मुश्किल है, और ये एक फेथ मिल जाता है और एक ट्रस्ट मिल जाता है कि दुनिया यहाँ की यहाँ जाए, ये एक मेरे पास, चाहे मेरे से दूर है बट मेरे पास, उसे मेरा ख्याल, तो पूरा हो जाता है। एंड दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ डिवोशन। और आप देखेंगे उन्हीं रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा डिवोशन है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये तो है। बट व्हाट हैव यू लर्नड फॉर आउट ऑफ पेशेंस, ये बताओ। इन विच वे आर यू? एनीवे व्हाटएवर वे। चलो मान लेते हैं पेशेंस कैन बी इन योर लाइफ फॉर अचीविंग योर ड्रीम, ठीक है, एंड उसके लिए यू हैव टू वेट, व्हाट लाइक
बहुत किसी किसी जन को साल साल मेहनत करनी पड़ती है. चलो वो इससे रिलेटेड बोल लो. Whatever patience has taught you in your life until now. Let's talk about a little about that. समझ आ रहा है. मुझे ऐसा लगता है मेरे जीवन हम बहुत पेशेंट हो गए पहले से ज्यादा, है ना, और ठोकर खा के पेशेंट हो. शुरू से इतने पेशेंट नहीं थे. शुरू में तो था ये चाहिए अभी चाहिए इसी वक्त. तो ये मैंने अर्न किया है, यू नो. I have earned how to be this patient, the art of being patient. Correct. I have learned this with life, and मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था ये सीखने का, बट लाइफ का सिखाने का पूरी नीति थी. तो हमने वो किया है. और जो मैंने सीखा है वो ये है कि जब मैं 19 साल की थी, मेरे प्लान्स बहुत अलग थे, है ना, और उनमें से कुछ प्लान्स फुलफिल हुए. और जैसे जैसे मेरा एज बढ़ता गया मुझे समझ आया कि कुछ पूरे होते हैं और कुछ नहीं होते. एंड टू एक्सेप्ट दैट इज द थिंग. And eventually, with all this life that has happened in, let's say, last 10 years with me, abhi I am at a point where I know कि मेरा clarity of thought है मेरे पास. तो उस clarity of thought के कारण, अच्छा मुझे 5 चीजें करनी है, ठीक है. सोचो मुझे एक वीडियो शूट करनी है, एक एग्जांपल लेते हैं. वो वीडियो शूट करनी है, मैंने सब ब्रीफ कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, बट अब आई एम नॉट बीइंग एबल टू हैव अ कम्युनिकेशन विद द पर्सन, है ना. तो आई विल सी इट इन अ वे, ठीक है अभी टाइम नहीं है. हाँ, डेडलाइंस जैसा कुछ नहीं है, बट if I'm like managing and playing, so when something does not happen for me, I take it as a sign that अभी कुछ और होना है. इसका मतलब ये नहीं है मैंने उसे छोड़ दिया है, बट मैं उससे अपने आप को एंग्री नहीं कर लूंगी, मैं अपना दिन नहीं खराब करूंगी उससे. मैं बोलूंगी कि अभी इस चीज के होने का टाइम नहीं है. और पता क्या होता है, उसी के 10-15 दिन बाद कुछ ऐसी चीज हो जाएगी कि मैं उस चीज में, नई चीज में व्यस्त हो जाऊंगी. बाय द टाइम आई विल फिनिश दैट प्रोजेक्ट, then that initial project which it was, you know, which somehow took longer will come, and then I'll be like, okay, now let's do it, and it will fall just perfectly. So whatever, I think the patience that came to me was to kind of take a back seat and in my life see what is working out for me, and keeping the things that are not working out in the back seat in my subconscious. Correct. That okay, this is there, and then when I have space I pick one and see, okay, how can I upgrade it a little more. If I can do, I will. If I can't do, no problem, I will do what is happening now. So yeah, so I think that's how I kind of understood patience, and it brought me to be more present. Wow. So Dharya, correct. And I guess it's an experience, proper experience that you go through while you're learning कि patience होता क्या है, ठीक है. हाँ, ये कोई नहीं सिखा सकता, ये आपको लाइफ ही सिखाती है. Correct. ये बात तो सच है. ये तो है. Talking about the experience part, ठीक है. I have seen that two things here. I have seen कि you have traveled quite a while in your life, ठीक है. You were in the US, you were in India. You have been very close to nature as well, ठीक है. That's what I have seen. Okay, I'll ask you 2 questions related to experience only. Okay, first things first. Being close to nature, being traveling across countries. Okay, does that experience teach you something about your own spiritual self? ठीक है. And after this, we'll move on to the next one. I would say a big yes to it. Because, you know, I've lived, people think that I'm only, like I'm into just a very bhakti-full atmosphere, which I am. I'm not lying about that. But I would also like to share that मेरी life हमेशा से वैसी नहीं है. Okay. You know, मतलब मेरा आसपास का एटमॉस्फेयर एकदम वैसा ही है घर पे. एंड यू नो द फैमिलीज दैट आई कम फ्रॉम, वेदर इट्स माय मैटरनल फैमिली और पैटर्नल फैमिली, एंड इवन द स्कूल दैट आई वेंट टू, ऑफ कोर्स आई हैव बीन ब्लेस्ड टू हैव दिस ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट
very rich in culture. But I have lived that life where I have, partied, gone out with friends, experienced a very different lifestyle altogether. And even in that, I say कि आप solo travel पे तो जाओ, friends के साथ जाओ, but just pack your bags and go to a mountain. Okay. Why I say mountain? क्योंकि खाली जगह बहुत आराम से मिल जाती है, हाँ. like you can just go for a trek. तो मुझे उसमें ये समझ आया बहुत शुरू से कि मुझे अकेले बैठ के सिर्फ नेचर को देखना, पेड़ को देखना, मतलब मैं आराम से घंटों बैठ सकती हूँ पेड़, पौधे, आसमान को देखते हुए, एंड आई फील वन विद द यूनिवर्स एंड द एनर्जी दैट इज देयर. So what it taught me was that I'm very complete, क्योंकि मैंने वैसा टाइम स्पेंड किया और मुझे कितना अच्छा लगता है. एंड हाउ आई फाइंड ब्यूटी इन लिटिल थिंग्स, एंड no matter where I travel, of course people are different. Somewhere people are racist, somewhere people can be whatever. Maybe I don't find the right kind of food everywhere, but nature will always be perfect. Correct. So, and it brings me close to me. So I think more than people or more than, food or anything else, I happen to connect more with the land and the nature, the trees, the animals. So I really, really like to spend time in seclusion in nature more than people. And there was a time where I was spending most of my time with a lot of people. So there is a difference to that. Okay. Lovely, because I am a person who loves to solo travel. Okay. I love nature. Like, I can't even tell you how much I love nature. Like, there was a time when I was telling my mother कि मेरे को जंगल में छोड़ दो, मेरे को best life. Okay. And बहुत सुंदर होता है. I totally love it. The experience, the smell, being around, let's say, things that are made for you, about you. Like, that is you. That is you. And I just love being around nature, traveling, and that has been an experience for me as well. Like, it teaches a lot about who you are. Teaches a lot about who. Yeah. I want to ask you. So, तो वो मोमेंट नहीं आता है जब आप नेचर में होते हो और आप एक सुंदर सा फूल देखते हो और वो इतना इंटीग्रेट होता है उसका मतलब बनावट में, द कलर्स एंड द शेप, एंड आई एम लाइक ओ माय गॉड, लुक एट द, like how is that even possible? And then it makes us wonder, like, wow, this little thing with so much detail. So yeah, solo traveler moment. I totally agree with you. Like, it can be even the smallest things, like a bird drinking water can make you feel good that you can't even breathe. And that is something that I feel all of us crave some or the other way. Everyone does. Yeah. Like, ठीक है, सबको मौका नहीं मिलता है, but everyone craves that. Everybody, I think, is also so used to वो जल्दी का used to रहते हैं ना. Correct. तो पहले तो उन्हें कूल डाउन होने में एक टाइम लग जाता है और कुछ लोगों को बहुत साल भी लग जाते हैं. Like I remember many old ladies come up to me in Rishikesh and they were like, हमें तो ऐसा लगता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं अपने लिए. समझ रहे हो कि मतलब हम तो बस always, they were like, we were always just so social and we never just took time. And Rishikesh is like, it's just different. It hits you differently. Correct. And you turn your face around, and because you're at the foothills of Himalayas, and Haridwar में फिर भी आपको city वाला लगता है, but Rishikesh is, you're almost going in the mountains now. So then they look around and they're like, now we are experiencing it. And अब क्योंकि मेरी life ऐसी नहीं है, I am in that atmosphere. So that kind of also makes me realize that how lucky I am. Correct. To be in this atmosphere. So yeah, totally like agreeing with you. When we talk about experience, okay, you've had that journey of, let's take, चलो मान लेते you are on level 2 of spirituality, ठीक है,
You have Yeah. taken that step where you have involved that in your life, day-to-day life. Okay. Can you share one experience that you have ever had that made you realize that you are like I can't like frame the question properly, but that experience made you realize that kuch hai. There is some miraculous energy. There is some magic here. So any one story that you would want to share? Actually, there are so many. I'm just trying to think like what is going to make the most sense. There are just so many experiences. Anything that is close to your heart. So I will share one experience, and this is old. This is really really old. When I like knew, एक तो ये है कि मेरा environment ही वैसा है, but एक होता है जब practically आपको experiences होते हैं, है ना? तो I remember I was which one should I share? I'm confused between two. Okay, pick a color, red or black. Red. Okay, I will share that story then. Okay. I kind of put it, okay, if he says this, then this, and that. Okay. तो क्या हुआ एक बार, I was in Amritsar and I was riding a scooter. And this scooter somehow, there was this Activa, and so the speed, I was racing it. Only one of my friends knows about this. Sorry, Mama. Sorry, No Papa. worries. So I was racing it, and there was nobody on the road, and I was getting very, very late. And my nani, she lives a little out of the city because she's the priest, and we have this big temple that we take care of. So अब मैं रास्ते में जल्दी जा रही हूँ कि मुझे तो जल्दी जल्दी पहुंचना है, नानी माँ को तो टेंशन हो जाएगी, है ना? मम्मी को तो फिर भी पता है, बट नानी तो मम्मी की मम्मी, तो टाइम पे जाना होगा. तो मैं रेस कर रही हूँ और मेरे बहुत दूर से मुझे एक ऑटो आता दिख रहा है, और अब मैं उसको कम नहीं कर पा रही हूँ रेस को. एंड आई एम लाइक आज तो उड़े, आज तो जाना ही है, क्योंकि क्या है ना, वो रेस इतना ज्यादा हो गया कि मैं ना तो ऐसे कर रही हूँ ना ऐसे, अगर मैंने किया तो मैं गई. तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, एकदम जा रहे हैं. एंड आई एम ट्राइंग टू कि ऑटो दूर से आ रहा, ऑटो वाला इधर उधर हो जाएगा, ठीक है? तो पर ऑटो वाला इधर उधर नहीं होता है. एंड व्हाट हैपेंस, सो लेट्स से दिस इज द ऑटो एंड दिस इज मी, and I'm going like this, and I know for a fact I hit the center of the auto, and I see this auto wala like right here, his face. It's like I crossed from the auto inside, and what happens, there's this big light, huge lightning, and only his face I saw, and he's also like this, and I'm also like this, and big lightning I saw. And immediately the scooter stopped, and this big lightning moved from down to up. And I looked up, and I see the auto is gone far, far away. Like I can't even see it. And I'm getting goosebumps now, but I just sat, I'm on the scooter, and I looked everywhere. And there was this one guy, one shop, tire shop. This guy came out, and he's standing, and he's also just like this. He's standing and looking, what happened? And this lightning I saw, it went up into the sky and like broad light, and I was like, and I felt like a feather, like somebody just picked me and put me there. When I know that I hit it, and there was no scratch on my scooter, there was no dent on my scooter, nothing happened to me, and I experienced that. And that day I was like कि मेरा टाइम नहीं आया है, पर ये जो हुआ है ये बहुत crazy tha, and I have experienced that. It was so strange, and I saw this light, and actually the electricity that then which I saw went all the way up. It brightened that black sky a little bit, and I'm like, oh my god, what just happened? It was strange, but I think that was when I knew that no, everything is there. Yeah. I have nothing to say post this. हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था ये वाला, बहुत ज्यादा.
Okay. Okay, let's keep this story till here because I don't think there is anything to ask after this as well. Okay. But like with respect to the story, but quite beautiful. I think sometimes we don't realize what protects us. Yeah, you said it very well. I was not, I was not. And that experience, I can say that if I'm like, that is the most top experience for me because yes, I've had many different experiences, but they were very subtle, Correct. But this was not subtle. This was right there. And I experienced this light and I'm actually feeling nice. And I'm like, what is happening? I'm supposed to crash into this auto. So yes, it was very off this world and out of this world. Correct. It was. I'll ask you two last questions. We have 5 minutes in hand. Okay. And I'll ask you two things. First things first. I had a conversation with one of my very close friends, and we came to a conclusion कि if I put logic in spirituality, in believing in magic, in that energy, then its existence vanishes. मतलब जहाँ लॉजिक है वहाँ स्पिरिचुअलिटी भगवान ये वो कुछ नहीं है. ठीक है. अगर ऐसा कोई बंदा है who wants to believe, who is okay to believe कि हाँ ये सब exist करता है, but it's very logical. ठीक है. He wants to break down everything, understand everything from, let's take the simplest forms. How does a logical person relate to spirituality? They need to read the Yog Darshan and they need to read Ved, because in that we find the definition of what is Paramatma, what is Brahman, what is Atma, and we don't just find the definition. इस पे हमारे जो saints थे उन्होंने तर्क किया है कि परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, और उसको जानने के लिए अलग अलग वो नहीं कहते हैं पॉइंट्स कि अगर आत्मा है तो वो ऐसे होगी, वो नश्वर होगी, वो आत्मा तो चींटी के अंदर में भी जाती है तो उसका साइज है कि नहीं है, वो ऊर्जा है या नहीं है. परमात्मा है तो परमात्मा का कैरेक्टर क्या है, परम आत्मा है ना. तो ऐसे ये है, हमें नहीं पता है, वो अलग बात है. तो जो लॉजिकल साइड है ना, बट आई विल कम टू योर अदर साइड आल्सो व्हिच इज द बिलीवर साइड ऑफ इट. तो अभी प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमारे पास लॉजिक भी पूरा है बट हमें वो पढ़ाई नहीं गई है और वो पढ़ाई जाती नहीं है. हमें खोजना पड़ता है, खोजने के भी बहुत देर बाद शायद आपको मिले तो मिले, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस है. मुझे भी एकदम से ये दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट यू टच्ड ये एकदम से नहीं मिला है. बहुत देर बाद समझ आया कि ये भी है. एंड जब आप एक्चुअली किसी आचार्य के साथ बैठ के, गुरुकुल के आचार्य के साथ बैठ के शास्त्रार्थ में बैठोगे जिसमें वो शास्त्र के अर्थ बताते हैं और उसमें आप क्वेश्चंस पूछिए उनसे और हर चीज का जवाब उनके पास है, तो आपको पता चलता है कि हमारे कल्चर का और देश का द बिगेस्ट टूल इज ज्ञान. बिकॉज द स्पिरिचुअल साइंस, इट्स नेवर स्पिरिचुअलिटी विदाउट साइंस. हमारे में ये सिखाया गया है कि they were just curious people who had questions, who were seeking who am I, what is this, what is that. So they did find reasoning and very practical reasoning to it all through the state of samadhi or meditation. So it's all there. And for a logical person who are not able to relate, I would suggest go to an acharya from a gurukul. वो आपको सब बता देंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे, पर आप उस मतलब सब कुछ लेके मत जाइए. एक प्रश्न लेके जाइए, उसको लेके आ जाइए, 3-4 महीने बिताइए उसके साथ. You will start seeing that happening. And now coming to the believer side. देखो, अगर आपने बिलीव कर लिया ना तो सब कुछ है, और अगर आपने बिलीव नहीं किया तो कुछ नहीं, है ना. तो ये जो बिलीवर साइड है ना, ये आ जाती है हमारी भक्ति साइड पे और कल्चर डिफरेंसेस की साइड पे कि यार मैं तो साउथ में ऐसे कर रहा हूँ तो मैं नॉर्थ में तो ये प्रैक्टिस नहीं है. तो हमें इन चीजों को अंडरस्टैंड कर ही लेना है कि कुछ चीजें जो शास्त्रों में है वो शास्त्रार्थ है. दैट वी हैव टू फर्स्ट एक्सेप्ट दैट वी हैव अ साइंटिफिक डेफिनेशन टू एवरीथिंग एंड you cannot find it, go find the teacher,
with this podcast, we also understand, find an acharya from a gurukul. They will tell you. Sant के पास जाए. उसके बाद the other part is the believer part, जहाँ पे ये differences आ जाते हैं. कोई पूजा कैसे करता है, कोई कैसे करता है, कोई प्रसाद में कुछ चढ़ाता है, कोई प्रसाद में कुछ चढ़ाता है. कोई मानता है तो ये है, कोई मानता है तो वो है एक ही निराकार के अलग अलग रूप. God resides in you, me too. God resides in animal too. है ना? तो ये सब हमारे को हेल्प करने के लिए है. तो अब हम उसको कितना मानेंगे, उसको सिंपल, थोड़ा सा मैं डीप जा रही हूँ इसके अंदर. बट इट इज ऑल्सो व्हेन आई वाज थिंकिंग कि देखो, हमें ये भी बोला जाता है ना, हर चीज का भगवान जी है इनके पास, हर चीज की, है ना. बट आप ये कभी समझो कि उसका कितना ब्यूटीफुल और कितना शार्प कंडीशनिंग है कि हम कहीं अकेले नहीं हैं. हम तो हर काम भगवान के ऊपर डाल देते हैं. इवन एक गाड़ी का बनना भी विश्वकर्मा जी एकदम. So we have always worshipped and prayed to the science of what is and what is not. So for every logical person who doesn't connect, there I am telling you, you will be able to connect, because many people who did not connect connected after Swami Dayanand Saraswati or Vivekanand ji also. And the believers who believe, you are the winners already. You are in the league. So yes, but हाँ, इसका आप तर्क नहीं करेंगे. अब सोचो, अगर मैं वो बोल दूं, अब मैं किसी लॉजिकल इंसान को बताऊं ऐसे वो जा रहा था और मेरा स्कूटर ऐसे आ रहा था और ये लाइट हुआ, पर मुझे पता है हुआ. लॉजिकल वाले बोलेंगे कुछ भी, है ना. तो ये तो है द सरप्राइज एलिमेंट. व्हेन यू थिंक यू नो इट, द सरप्राइज एलिमेंट ऑफ ऑल मेक्स यू अंडरस्टैंड. जो हमारे सेजेस थे, जो जाते थे तपस्या करने, बार बार तो इसीलिए जाना पड़ता था, because the surprise element only brings it, like, oh, now this. Correct. So that's what I would say for that. Lovely, actually lovely. But we just have like the last 1.5 minutes left, and I'll ask you this one last question, okay? And it may be like the ending note as well. Okay? Like, this is something that I would want to share as a message to everyone as well. Okay? Yeah. And it's a simple fill in the blanks. Okay? And I do this with every other guest. Okay? Every guest basically. Okay? And it's like, it goes like, have a laksh to do dash. Okay? Malab, have a laksh to fill in the. If you had to motivate someone, if you had to tell someone one message कि जिंदगी में have a laksh to, what would you say? Have a lakshya to have a lakshya in life. That is important. You're laughing. That is the most important. Have a lakshya to have a lakshya in life. Because life without lakshya is nothing. It means nothing. Purpose, goal, important. And that's actually my line as well. Have a lakshya. Full stop. Yes. Have a lakshya. So here we have it with lakshya. Have a lakshya to do. Let's go. What is it? Have a lakshya to have a lakshya. Thank you so much, Rhythm, for coming today. I loved having a conversation with you. It was amazing hosting you. To meet you in person, and possibly we'll do another. Yeah. I'm looking forward to that. Really, really nice. Really good time. Looking forward to it. Thank you so much for having me. And everybody else, please have your lakshya, because it's important. Om Shakti, Om to everybody. Thank you. Om Shakti, Om.